Hello everyone. Welcome to yet another episode of HR Unlocked. Here we are trying to talk to HRs and people from talent industries to understand how they navigate the people puzzle. And in this episode, we have with us Sakshi Bandhare. Hi Sakshi. Hello Anshika, how are you? I'm good. Welcome to our episode. So, I would like to introduce Sakshi a little before we go ahead. Sakshi is basically having a very crazy journey. She started her education in maths and physics, and there was a transition in career where she went for pursuing MBA. So this is a very interesting thing to know about you, Sakshi. I really want to know a little more from yourself. कि ये कैसे transition आया, कैसे आपने सोचा कि math और physics pursue करते हुए आपने decision लिया to go for MBA. Please tell us more. Yes, so as you mentioned, it was actually a crazy journey to be honest, because I was a kind of a nerd student, है ना, कि जो पढ़ाई में एक्सेल होगा एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था तो मैथमेटिक्स रिलेटेड करियर जर्नी परस्यू करेगा. That was my aim also, like go for the masters as well in the mathematics, then study statistics and related to the same field. But yes, I have switched my career, my aim when I was in the final year. So first of all, जब मैं first year में थी, I was introduced as a executive member at very own cell of our college, which is the WSTC, Women's Studies and Development Cell. It was more of awareness sort of a cell. Like we used to take a lot of topics. कि जैसे हो गया कि जेंडर अवेयरनेस हो गया, डिफरेंट करियर रिलेटेड एस्पेक्ट का अवेयरनेस हो गया, बिकॉज करियर काउंसलिंग इज आल्सो द वन ऑफ द मेजर पार्ट जो हम लोग हैंडल कर रहे थे. तो वहां पे व्हेन आई वाज द एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो वहां पे जब मैं काम कर रही थी, आई वाज यूज्ड टू डील विद अ लॉट ऑफ माय पीयर्स, जो कि मेरे फ्रेंड्स है, टीम मेंबर्स है, सीनियर्स है. So that time I realized this is something I'm really enjoying, to getting to know the people, handling my own team, then not just handling my own team, organizing different aspects जो कि एक particular program में होते हैं, एक team management के लिए जरूरी होता है. तो ये सारी चीजें मैंने जब स्टडी की कि ये भी एक पोर्शन होता है जहाँ पे मैं कहीं ना कहीं करियर भी परस्यू कर सकती हूँ. That time I got to know more about the HR domain. फिर again मैंने बहुत लोगों से बात की कि they are already working in this particular domain. For example, say the recruiters, HR manager, executives, generalists. That time again I realized the HR is the huge umbrella. What I was thinking, HR is just a recruiter. है ना, एक जो मेजर एक कंसेप्ट होता है कि हाँ राइट, कि HR से हायर करते फायर करते, that's it. But when I used to get into that particular domain, वो लोगों से मैंने बात की, then I got to know कि HR is a big umbrella. वहाँ पे बहुत सारे aspects होते हैं, different domain होते हैं, हर एक का काम अलग होता है, हर एक की पहचान अलग होती है at the workplace. Then that time I decided to go for the HR domain. Obviously जो एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आता है, ऐसा नहीं कि मेरी डिग्री पूरी यूजलेस हो गई है. सो एक एनालिटिकल जो एक थॉट होता है फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, तो वही कहीं ना कहीं मेरा जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो यूज में तो आ रहा है. बट आई एम मोर देन हैप्पी दैट विदाउट वेस्टिंग टाइम at the end of my final year I have decided to go for the same. And yeah, I'm doing really well and I'm looking forward to build my probably a business partners related journey. Wow. Yeah, that was crazy yet enjoyable journey for me. Okay, चलिए ये तो हुआ एक बहुत ही प्रोफेशनल और करियर फोकस्ड एस्पेक्ट अबाउट यू साक्षी. बट मैं जानना चाहूंगी कि जब आप आपके कॉलेज में थे, व्हेन यू वर स्टडीइंग, तो ऐसी क्या क्रेजी चीजें थी, ऐसे क्या पैशन थे, एस्पिरेशन थे उस टाइम पे कि there are certain things जो कि they keep us going. So what were those things for you? So see, before the graduation years also ना, जब वो start होने का था, I was very studious kind of a person. कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं and that's it.
when I enter कि एक जो होता है ना कि फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया है, यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ न्यू पीपल, तो दैट टाइम व्हाट आई पर्सनली एनालाइज्ड कि मुझे और भी खुद को एक्सप्लोर करना है, ठीक है, सिर्फ स्टडी रिलेटेड तो हूँ मैं, बट व्हाट एल्स थिंग्स आर देयर दैट आई प्रोबेबली कैन लुक फॉरवर्ड. सो उस चीज को लेके आई गॉट इनटू द डिफरेंट सेल्स, लाइक फॉर एग्जांपल से WSDC तो था ही, साइंस फैकल्टी थी जिसमें आई वाज द मेंबर ऑफ द सेल, जहाँ पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे. आई वाज द मेंबर ऑफ इट, समटाइम्स आई वाज द हेड ऑफ इट, एंड एट द फाइनल ईयर आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेल, बिकॉज वो 3 साल कंटिन्यूस उसमें मेरी जर्नी रही है. I was just, working under some people. Then after that, in the final year, I was the head. People were working under me. So that was the crazy journey. बहुत कुछ सीखने को मिला. And जो भी major aspects होते हैं as a HR, to build a team, to manage the team, for example, say grievances भी होते हैं, कुछ problems वगैरह रही टीम में, तो you have to solve that thing. तो वो एक सारी चीजें ना मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे ही knowingly और unknowingly वो सीखती रही. So that actually leads to my core interest in the HR domain. So I must say that, the graduation days only made me to choose this particular domain. And yeah. जैसे कि आप बार बार मेंशन कर रहे हैं साक्षी कि you had been very studious person जिसको लगता था कि पढ़ो और मार्क्स लाओ, तो अब जब आप खुद को देखते हैं, like when you compare this version of this current version of Sakshi with that past version of Sakshi, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं? क्या आप अभी भी वैसे ही हैं या फिर अब आप थोड़े से फन गोइंग हो गए हैं? So नहीं, when it comes to the study, हाँ मैं पढ़ती रहती हूँ, बट डिफरेंस यही है कि जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे थी मैं मोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ती थी. अभी भी पढ़ाई शुरू है, बट वो फोकस वहां से हट के अभी HR डोमेन में चला गया. सो आई रीड अ लॉट अबाउट द HR डोमेन, HR एस्पेक्ट्स, and what are the good opportunities are there in the future for the HR people. क्योंकि बहुत सारे myth है in the market about the HR. To be honest, कुछ लोग अभी भी बोलते हैं कि you guys do nothing at the workplace. What is your work? But I must say the HR people are the linkage between the employees and the employer. उनका अगर एक फोकस हट गया, उनका एक मैनेजमेंट सिस्टम हट गया, सो देयर इज द हाई चांसेस कि जो स्मूथ मैनेजमेंट चल रहा है प्लेस में वो ना चल पाए, है ना. सो देयर आर द लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोफाइल्स एज वेल, वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द HR डोमेन. तो ये जो सारी चीजें होती है, तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज टू लर्न मोर अबाउट इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, राइट, जो कि कोरली मुझे शायद एक पूरा का पूरा जो HR का एक फंक्शन होता है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी. सो या, बिकॉज सी व्हाट हैपेंड इन द ग्रेजुएशन डेज कि सबने बोला था कि MBA कर लेना, फुल टाइम 2 years का MBA, बट व्हेन इट कम्स टू द MBA तुमको कॉलेज भी बहुत स्पेसिफिक चूज करना है. इफ यू आर डूइंग फ्रॉम द राइट कॉलेज देन ओनली देयर आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अदरवाइज नन. इट्स वेरी ट्रू. बट व्हेन इट कम्स टू द गुड कॉलेज ना, गुड फीस स्ट्रक्चर भी आता है जो प्रोबेबली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना. कोई हो सकता है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो वो कर लेंगे एंड दैट्स फेयर इनफ, क्योंकि बाकी के लोग फिर एजुकेशन लोन जाता है, तो उसमें भी एक मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव होता है कि लोन लेंगे तो फिर इंटरेस्ट भी होता है, फिर उसको चुकता करते बैठो. सो दैट वाज माय थॉट कि बिफोर डूइंग द MBA आई विल ट्रेन माई सेल्फ व्हाइल डूइंग सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो करके आई विल गेट इनटू दिस पर्टिकुलर डोमेन. फॉर एग्जांपल से रिक्रूटर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो आई स्टडीड अ लॉट अबाउट रिक्रूटमेंट. आई गॉट इनटू द प्रोफेशन. मैंने इंटर्नशिप किया पहले विदाउट डूइंग अ MBA. इट वाज मोर ऑफ लाइक 6 महीने का इंटर्नशिप था जिसमें बहुत कुछ सिखाया प्रैक्टिकली कि एंटायर रिक्रूटमेंट क्या होती है, कितने सारे स्टेप्स होते हैं. व्हाट आई वाज थिंकिंग इज जस्ट यू आर पोस्टिंग अ जॉब एंड हायरिंग पीपल. नो, मल्टीपल लेयर्स होते हैं ना. तो वो सारी चीजें सीखी. अभी नाउ आई एम फाइनली फोकस्ड दैट यस आई कैन गो फॉर द MBA one. So that is how I'm doing a weekend mode as of now. But yeah, certainly it will add some major points to my profile. But yes, अगर बहुत सारे लोगों का questions भी होता है, like major juniors have asked me कि यार भी आपने तो मतलब करियर स्टार्ट कर दिया था HR डोमेन में, कि आपने बिना MBA के स्टार्ट किया था, तो इस really MBA needed for the HR people to start their journey. So the thing is you can start, but
सी हर एक चीज से तुम ट्रेनिंग में या फिर सर्टिफिकेशन पर्सन में नहीं सीखोगे. प्रोफेशनल डिग्री रहेगी, सर्टेनली इट विल गोइंग टू ऐड सम वैल्यूज टू योर प्रोफाइल एंटायरली. तो वो सोच के तुम कर सकते हो. तो या दैट्स व्हाट आई डिड. थैंक यू साक्षी फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. आई थिंक आई एग्री कि एक मिथ जो है वो बहुत ज्यादा, मिथ बबल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है कि एचआर करते ही क्या है. एंड यस, क्योंकि मैंने बहुत ही क्लोजली काम किया है मेरी एचआर टीम के साथ इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, तो वो चीज मैं समझ सकती हूँ. क्योंकि मैंने देखा है कहीं ना कहीं एक एचआर का जो जॉब रोल होता है वो हर स्किल को थोड़ा थोड़ा इनवाइट करके रखता है. आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है, आपको पोस्ट भी करना है, आपको सेल्स भी करना है, आपको स्क्रीनिंग भी करना है. यू हैव टू बी लिसनिंग पर्सन, यू हैव टू बी स्पीकर. आपको एक वार्मथ दिखानी है, एक सिंपैथी दिखानी है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस जहाँ पर टीम शुड नो कि यू हैव दैट अथॉरिटी एज वेल. मतलब यू हैव टू बी फ्रेंडली बट यू हैव टू बी बॉसी एज वेल. सो करेक्ट, ये जो एक स्वीट एंड सॉल्टी कॉम्बिनेशन होता है, so it really inspired me. And that is also one of the reasons कि क्यों मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्यों हम इस पॉडकास्ट के साथ आगे जा रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में. सो नाउ आई थिंक आपका एक चीज और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी. जैसे कि आपने बोला कि यू स्टार्टेड योर करियर इवन बिफोर आपने एचआर में एमबीए ज्वाइन किया था. सो कभी भी जैसे कोई अगर जो दूसरे एचआर थे वो आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद देयर करियर, कई बार ऐसा होता है बिकॉज यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो उन्हें कुछ ऐसे कंपनीज में जॉब मिलता है इनिशियली विच आर एजेंसीज, विच आर बेसिकली फैसिलिटेटर्स टू अदर कंपनीज, जो कोर कंसल्टेंसीज जो कि हम बोलते हैं. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ज्वाइनिंग और गेटिंग स्टार्टेड इन योर करियर बाय ज्वाइनिंग अ कंसल्टेंसी फर्स्ट एंड देन टेकिंग दैट leap ahead? Thank you so much for the question. I myself will give my example because I started my career with the consultancy. Okay, so see, when it comes to the MNC ना, वहाँ का एक प्रोसेस सेट होता है, ठीक है. यू जस्ट हैव टू ज्वाइन. एक जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है दैट यू हैव टू फॉलो. एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वो करना है, एंड देन देयर इज अ सिस्टम इज ऑलरेडी डिजाइन्ड फॉर यू. जब तुम एक कंसल्टेंसी में काम करते हो या फिर स्टार्टअप का काम ले लो, नो देयर इज नो एज सच फिक्स्ड थिंग कि तुमको वही करना है. यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. डजंट मैटर कि तुम एचआर में काम कर रहे हो, मार्केटिंग में काम कर रहे हो, है ना, ऑपरेशन एज यू मेंशन, कि बहुत सारी चीजों का नॉलेज तुमको होना चाहिए. सो इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर द एचआर अकॉर्डिंग टू मी. इट्स माई पर्सनल व्यू. आई एम नॉट हिटिंग आउट समबडी एल्स, बट एक पर्सनल व्यू है कि जब तुम किसी कंसल्टेंसी या फिर जो होता है स्टार्टअप, उसमें अगर तुम स्टार्ट करोगे यू विल गेट टू नो अ लॉट, नॉट जस्ट अबाउट योर प्रोफेशन. एक मार्केटिंग का भी एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है कि ठीक है, ऐसे सेल्स का होता है एक पर्टिकुलर ग्राफ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ तुम्हारी कंपनी स्टैंड कर रही है. देन व्हाट आर द बैकग्राउंड थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड. जो ऑपरेशंस होता है ना, तो ये सारी चीजें का बहुत अच्छा नॉलेज आता है. तो बिफोर गोइंग फॉर द एमएनसी आई वुड इट्स माय ओपिनियन कि स्टार्टिंग योर करियर विद द कंसल्टेंसी, बिकॉज कंसल्टेंसी के साथ ना बहुत सारे क्लाइंट कंपनीज भी जुड़ी होती है. So you will going to fill out और fulfill their requirement. For example, say कुछ अगर requirement वहाँ से आ रही है that we guys are hiring for the freshers or executive, तो वहाँ पे your major role plays into the picture. For example, say fresher के लिए भी तुम hiring कर रहे हो, not for your company but at least for your client companies. तो वहाँ का भी recruitment process if you are handling, तो fresher से लेके till the executive members, so एक complete process का एक understanding आ जाता है. So this is my personal opinion कि consultancies के साथ जाओ या फिर startup के साथ जाओ, but yeah, it will be a better option only. Thank you for sharing that. So now I would like to move this discussion towards understanding better कि how do you navigate the people puzzle, या फिर what is your industry experience in navigating the people puzzle. So एक challenge जो common है बहुत ही industry में, जो कि टीम की प्रोडक्टिविटी को लेकर आजकल देखा जाता है साक्षी, कि कहीं ना कहीं एक जो जनरेशन जी की बात करूं या मिलेनियल्स की बात करूं, तो हमें लिबर्टी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जो कि आजकल कंपनीज काफी हद तक दे भी रही हैं.
लेकिन इन या लिबर्टीज के साथ साथ कहीं ना कहीं चैलेंज एज एन एचआर जाता है या एज अ मैनेजर या एज एन एम्प्लॉयर जाता है, जहां पर टीम की प्रोडक्टिविटी कई बार हम नहीं एक बाउंड्राइज कर पाते हैं, हम एक लिमिट नहीं क्रिएट कर पाते हैं कि हाउ मच लिबर्टी टू गिव टू देम, और कितना ऐसा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो वो प्रोडक्टिविटी का जो एक वर्ड में अगर बोलूँ, तो इस प्रोडक्टिविटी का चैलेंज क्या आपको भी आता है टीम की प्रोडक्टिविटी हैंडल करने का, हाउ डू यू मैनेज? okay, so there are the three stages when it comes to the Gen Z people and the millennial one. एक मिलेनियन होते हैं जो प्रोबेबली एक सर्टेन इन्वायरमेंट में ग्रो किए हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू द हायरिंग प्रोसेस ऑल्सो नो एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो किया जाता है फॉर द मिलेनियन पीपल एंड दे आर ओके विद इट, विच इज द गुड थिंग. नाउ व्हेन इट कम्स टू द जेन ज़ी पीपल, दे प्रोबेबली आर नॉट, यू नो, क्योंकि अगर उनका इन्वायरमेंट भी देखा जाए, दे आर यू नो मोबाइल कैची, एंड एक होता है ना कि अगर उनका ग्रोथ का भी देखा जाए तो उनको सारी चीजें ना फास्ट चाहिए होती है. दे आर नॉट द पेशेंट वन. सो व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, दे आर द प्रोडक्टिव वन. इसमें कोई डाउट नहीं कि दे आर नॉट द प्रोडक्टिव वन. आई वुड मस्ट से दैट अभी अगर ChatGPT भी देखा जाए, अगर मिलेनियन को बिठा दो, जेन ज़ी को बिठा दो, जेन ज़ी विल एक्सेल दैट थिंग. व्हाट दे डोंट लाइक इज टू बी गेट लाइक कंट्रोल्ड बाय समवन. ठीक है, उनको वो नहीं पसंद. सो लॉट ऑफ मिलेनियन पीपल व्हाट दे वांट कि ठीक है, अगर मैंने उनको कुछ काम दिया है, इतने टाइम में, इतने पैटर्न में कंप्लीट होना चाहिए. दिस इज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द जेन ज़ी. जेन ज़ी का क्या कहना है, इफ यू वांट टू बी डन दिस पर्टिकुलर वर्क, तो वो मेरे एंड पे छोड़ दो, मैं आपको उस टाइम पे करके दूंगी या दूंगा, बट द वे आई एम गोइंग टू फॉलो इट्स गोइंग टू बी माय वे, है ना. तो एक सर्टेन उनको फ्रीडम चाहिए रहती है व्हेन इट कम्स टू द, है ना, कोई काम करते टाइम या फिर कुछ भी. एंड HR पीपल अभी जैसे रिसेंटली ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द जेन ज़ी ना, तो उनको ऐसा नहीं रहेगा कि उनको काम नहीं करना है. दे वांट टू वर्क इन वन पर्टिकुलर वे, कि ठीक है, अगर आपको एक पर्टिकुलर मतलब डेडलाइन दी गई है तो हम वो काम करके देंगे, बट जो वे रहेगा, जो पैटर्न एक रहेगा, वो एक लिबर्टी हमें दे दो, दैट वी विल गोइंग टू यू नो मैनेज इट आउट, एंड वो उस टाइम में आपको वो काम आपको मिल जाएगा. देयर इज नथिंग टू वरी. बट और एक जो डिफिकल्टी या फिर एक चैलेंज होता है व्हेन इट कम्स टू द हायरिंग प्रोसेस, वो एक मेजर होता है. जैसे एक होता है ना कि पहले के लोग जैसे बोलते थे कि अभी के बच्चे हैं वो क्या कर लेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे. सो देयर आर द वेरी अनसर्टेनिटी एंड द ट्रस्ट इश्यूज. तो यही चीजें व्हेन इट कम्स टू द वर्क प्लेस ना होती है. फॉर एग्जाम्पल से मिलेनियन पीपल एंड यू नो द जेन ज़ी पीपल, दे आर द कलीग्स एज वेल, बट यहाँ पे कंफ्लिक्ट के थोड़े बहुत यू नो चांसेस होते हैं कि यू नो प्रोबेबली उनका पर्सपेक्टिव कुछ और है, इनका पर्सपेक्टिव कुछ और है, बट येट दे आर यू नो हैव टू वर्क इन अ टीम. तो ये सारी चीजें उनको बैलेंस करते हुए चलना है. दैट्स व्हाट इवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन वी बिलीव, एंड वी आर सीइंग ऑल दिस यू नो चेंजेस एंड डिफिकल्टीज. बट एट द एंड एक मोटो रहता है कि वी आर वर्किंग फॉर वन पर्टिकुलर कंपनी, एंड उनका कुछ काम है जो टुगेदरली वी हैव टू यू नो फिनिश इट ऑफ. तो जब वो एक पॉइंट आ जाता है, देन you know we guys neglect all these things and work togetherly and just you know complete our task before the deadline. साक्षी, आप जो अभी बात कर रहे हैं, इससे मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है. आई थिंक अदर देन प्रोडक्टिविटी, एक और जो हम एक चैलेंज फेस करते हैं, विच इज कम्युनिकेशन गैप, जो है वो कहीं ना कहीं या तो ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होता है, या तो ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है. तो आई मीन, डू यू ऑल्सो थिंक कि कई बार आपको ऐसा लगता है जब कोई जैसे एक पर्सन या एक एंटिटी आपके पास आके कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम मानो दूसरा एंटिटी आके भी आपसे कुछ उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपस में बात कर लो ना, व्हाई आर यू कमिंग टू, ऐसा होता है HR के साथ कई बार. तो आई वांट टू नो योर थॉट्स कि क्या ऐसा कम्युनिकेशन गैप एक्सपीरियंस आपने फेस किया, कुछ अगर आप आपके स्टोरी शेयर कर पाए. Yes, so see, when it comes to ना कि communication का गैप बिल्कुल भी नहीं होगा, so there are only 10 to 20% chances in the workplace जो कि नहीं होगा. There are the high chances कि communication gap रहेगा ही, because at work
प्लेस वी बिलोंग टू लाइक फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। कोई प्रोबेबली हो सकता है सिटी से बिलोंग कर रहा होगा, कोई रिलोकेट होके आया होगा फ्रॉम द विलेज एरिया, कोई किसी और जगह से। सो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एज वेल, तो तुम्हारा कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कि तुम सिर्फ सुनने के लिए मतलब सुन रहे हो कि तुमको कुछ रिस्पॉन्ड भी करना है उसके लिए भी सुन रहे हो। तो वो सारे पैरामीटर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं व्हेन इट कम्स टू द पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर एक इंसान तो सेम नहीं रहेगा, सो हर एक का थिंकिंग प्रोसेस इज डिफरेंट, द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि कम्युनिकेशन गैप रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू द ऑब्जेक्टिव, कि ठीक है हम लैंग्वेज का बैरियर नहीं ले रहे, हम इफेक्टिवनेस का बैरियर नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक चीज रख रहे हैं कि ठीक है कौन से भी वे में वो इंसान हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, बट जो उसका पॉइंट है क्या हम तक के पहुंच रहा है। इफ इज यस, दैट पर्सन इज having a good level of communication with the authority। अभी जैसे कोई दो इंसान भी आता है एक सेम पर्टिकुलर मैटर को लेके अगर बात कर रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव साइड में शायद बात करेगा, एक कोई नेगेटिव साइड में बात करेगा, बट द इंटायरली जो उसका ऑब्जेक्टिव है, इज इट समथिंग अलाइंड विद देयर ओपिनियन? अगर हाँ, तो फिर वो इंटायरली एक ग्रुप डिस्कशन बन जाता है, फिर वो एक इंडिविजुअल एंटिटी नहीं रहती है। तो फिर वहां पे एचआर भी एज अ नॉट अ प्रोबेबली एज अ बॉस और प्रोबेबली एक हायर अथॉरिटी की तरह बात करें, वो प्रोबेबली यहाँ पे तुम ग्रुप डिस्कशन जैसे कर लो, है ना, कि एक तुम्हारा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। करेक्ट। So as now we are doing it, we are just having a very casual conversation. तो यहाँ पे अगर तुम आगे वाले को भी वो comfort महसूस कराओ, so there are the high possibilities कि if that person is afraid to say something, वो वहाँ पे वो सारी चीजें probably नहीं लाएगा दिमाग में, एंड वो सारी चीजें बेटर वे में कम्युनिकेट कर पाएगा। इवन दो वहाँ पे शायद उसका लैंग्वेज बैरियर आ रहा होगा, शायद एक्टिवनेस पे भी आ रहा होगा, तो ही विल नॉट गो टू केयर। उसको पता है कि आगे वाला इंसान जैसे में मैं बात कर रहा हूँ सुन लेगा। सो दैट अगर वो एक सिक्योरिटी है, दैट कंफर्ट फेज है, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट कम्युनिकेशन गैप विल बी द मेजर इश्यू एट द वर्क प्लेस। तो या दैट थिंग इज देयर। तो हम इस चीज का फिर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं कि इन्वॉल्व वो जो होता है ना, वो तुमको महसूस करा के देना है आगे वाले को। सो वेदर इट्स हाई अथॉरिटी, द जूनियर अथॉरिटी, डजंट मैटर। Very well. Thank you for explaining that. अभी जो आप बात कर रहे थे उससे मुझे एक चीज और थोड़ा सा समझ में आ रही है। एक जो चैलेंज मुझे फील होता है पर्सनली, जो मैंने देखा है सबसे ज्यादा, कि जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं एक कंपनी में, जैसे जिन्हें शायद 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ता हुआ है, एंड स्पेशली जो कुछ आज के न्यू जनरेशन एम्प्लॉइज होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, ऐसे टीम मेंबर्स को ज्यादा मेंटरिंग पसंद नहीं होती है। तो अगर जैसे मैं एक कॉम्बिनेशन की बात करूं, जहां एक पर्सन है जैसे 10 साल 12 साल या 15 साल हो गए हैं, और उस पर्सन को काम करने दे दिया जाए मे बी विद एन इंटर्न, या कोई भी एक नया पर्सन आया है जिसे 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ जो पर्सन आया है, और वहां पर अगर एक टीम लीड है जिसके कि 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये 4-5 साल एक्सपीरियंस वाला पर्सन जो है उसको पसंद नहीं आएगा ज्यादा मेंटली। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू साक्षी, कहाँ पर एक वो लिमिट होना चाहिए मेंटरिंग की, कहाँ पर एम्प्लॉइज को समझना चाहिए, कहाँ पर टीम मेंबर्स को समझना चाहिए कि हाँ मेंटरिंग जरूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, और कहाँ पर एज अ टीम लीड एक टीम लीड को भी समझना चाहिए कि हाँ कोई पर्सन आ रहा है तो वो एक स्किल सेट लेकर आ रहा है, आप अगर उसको ला रहे हैं तो आपको एक फेथ उसमें रखना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन। See, when it comes to the senior people, no, they are already into the workplace. मतलब उन्होंने इतने साल तक के एक जगह पे काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक हक जताना होता है ना, जैसे कि अपन एक जगह पे बहुत टाइम तक के रहे हैं, तो एक होता है कि कहीं ना कहीं मेरी ज्यादा सुनी जाएगी, या फिर एक मेरा भी हक है यहाँ पे क्योंकि मैंने इतने टाइम तक के काम किया। तो वो कहीं ना कहीं मेंटालिटी में डिफरेंस आता है, एक सॉर्ट ऑफ थॉट होता है विच इज नॉट ट्रू, बट गलत कहा जाएगा जब तुम आगे वाले को वो एक महसूस कराओगे कि आई एम द ओनली वन हु इज हियर एंड हु इज द सीनियर वन, हु इज द राइट वन, यू आर जस्ट ज्वाइनिंग नाउ, सो यू शुड लिसन टू मी फर्स्ट। तो वो एक चीज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो नया नया इंसान अगर आके ज्वाइन कर रहा है तो उसके मन में भी बहुत सारे थॉट आएंगे कि इट्स गोइंग टू बी द न्यू मैनेजर फॉर मी, एक नया लीड रहेगा या फिर एक नया इन्वायरमेंट वर्क रहेगा, तो मैं कैसे क्या अपने खुद को उसमें
कंफर्टेबल करूंगा, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है. इट्स प्रोबेबली द 1 month ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन योर टीम लीड. अगर टीम लीड बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, दैट पर्सन इज वो एक हायरार्की मेंटेन नहीं कर रहा है ना, कि तुम मैनेजर हो, तुम एक जूनियर हो, तो हो सकता है 2-4 दिन में वो इंसान कंफर्टेबल हो जाए. सो हियर व्हाट आई बिलीव इज 360 feedback, right? The feedback thing is, the major thing that, even manager as well as junior people needs to keep in mind. क्योंकि एक एचआर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक होता है ना कि एम्प्लॉयज का फीडबैक एम्प्लॉयर तक के पहुंचाना, एम्प्लॉयर का फीडबैक एम्प्लॉयज तक के पहुंचाना. ठीक है, वेदर अगर तुम एनोनिमसली भी कर रहे हो डजंट मैटर, या फिर नाम मेंशन कर रहे हो डजंट मैटर. तो उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो कि मेरा टीम लीड या फिर मेरा जो मैनेजर है व्हाट ही इज और शी इज थिंकिंग अबाउट मी. ठीक है, तो सेम वे वाइस वर्सा, इवन एम्प्लॉयज को पता चलेगा मैनेजर क्या थॉट प्रोसेस रखता है मेरे बारे में, इवन मैनेजर को पता रहेगा कि एम्प्लॉयज क्या थॉट प्रोसेस. तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ दिस 360 फीडबैक विच आई एम यूजिंग द टर्म, क्योंकि एचआर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड लॉट ऑफ पीपल मोस्टली निग्लेक्ट दिस थिंग, क्योंकि ये थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो या वी शुड नॉट कीप दिस हायरार्की थिंग वेरी एक्टिव. ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा निग्लेक्ट कर लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा. अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजर एंड द जूनियर्स, राइट? बट यू शुड नॉट एक्टिवली फॉलो दिस थिंग व्हेन इट कम्स टू द फीडबैक. डोंट टेक इट पर्सनली, राइट? एक पैटर्न समझ के लो कि हम एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए क्या अच्छा रहेगा, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल. सो ये फीडबैक को एक पर्सनली ना लेते हुए यू कैन टेक इट एज समथिंग वेयर आई प्रोबेबली वर्क ऑन. ये दोनों के लिए लागू होगा, है ना? एक मैनेजर के लिए भी लागू हो जाता है, एक जूनियर पीपल के लिए भी लागू हो जाता है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट एनालाइज व्हाट वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग और प्रोबेबली doing something probably जो कि favorable नहीं है. So you can just analyze that thing, take a pause and work on it. ये मैं personally भी ये करती हूँ. So हम जो conversation कर रहे हैं इसमें मुझे एक aspect ये add करना है कि जैसे जब हम mentoring की बात कर रहे हैं, जैसे startup की बात करूँ या एक mid-size company की बात करूँ, तो वहां पर तो फिर भी ठीक है, एज अ टीम लीड आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप ज्यादा हायरार्की क्रिएट ना करें. लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एक बड़े कंपनी में वर्क कर रहे हैं, से कंपनी ऑफ 1000 पीपल और कंपनी ऑफ 500 पीपल, तो वहाँ इस तरीके के जो हायरार्कीज होते हैं वो बहुत ही नेचुरल हैपनिंग होते हैं. आई मीन यू एक्चुअली कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द हायरार्की. तो ऐसे में भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजर्स और टीम मेंबर्स दोनों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कोलैबोरेट करें, किस तरीके से ये जो मेंटरिंग आ रही है, एक टीम मेंबर होने के नाते एक जो मेंटरिंग आ रही है एक टीम लीड के एंड से, तो उसको भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि अरे बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम एक जो टीम लीड होता है उसको कई बार लगता है कि, या अगर मैं बात करूँ एक मैनेजर को कई बार लगता है कि अरे व्हाई आर दे नॉट इन्वॉल्विंग मी इनटू ऑल ऑफ द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग. ये लोग क्यों बार बार मुझे स्किप करके एक सीनियर पर्सन के पास जा रहे हैं. सो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट करता है. सो कैसे इस चैलेंज को थोड़ा बहुत हैंडल किया जा सकता है, बीइंग अ मैनेजर स्पेशली जो बर्नआउट एक मैनेजर फील करता है, सो हाउ कैन दे वर्क ऑन दिस? See, as you mentioned, the basic hierarchy thing, right? So the manager is there, then the executive member is there, then the junior member is there. ये basic hierarchy surely it has to be there. Otherwise, differentiate कैसे करोगे तुम? एक particular manager कौन है and उसकी जो भी कुछ एक roles and responsibility रहती है, वो junior पे कैसे क्या reflect होगी? So that thing has to be there. What I am trying to say, जो एक hierarchy जो वो लोग एक personally ले लेते कि I am the boss, I have to act as a boss. And that people whoever working under me should understand me at the same time, who listens to me whatever I'm saying. तो वो एक चीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज आई मेंशन कि जैसे इंटरव्यू में भी होता है, इफ यू आर मेकिंग दैट पर्सन कंफर्टेबल, दैट पर्सन विल ओपन अप लॉट ऑफ थिंग्स जो कि शायद इनफॉर्मली भी हमें कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए. सेम गोज विद द हायरार्की थिंग्स एज वेल. इफ माय जूनियर इज कमिंग टू मी एज अ एग्जीक्यूटिव और द मैनेजर पर्सन, उसको एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ओ आई एम टॉकिंग टू माय बॉस, आई शुड मेंटेन दैट सर्टेन पैरामीटर्स. डिग्निटी दैट पर्सन शुड मेंटेन, देयर इज नो डाउट. बट वो एक पैरामीटर होता है जो शायद कहीं ना कहीं उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है.
वो नहीं होना चाहिए. That way hierarchy should not reflect what that person is trying to say. वो कहीं ना कहीं मेंटेन तुम कैसे कर सकते हो? You can keep communicating with your team, है ना? As a manager एक होता है कि not always you are giving them a task कि एक aggressively पूछ लिया कि ठीक है ये डेडलाइन है, मुझे ये काम इतने टाइम में चाहिए. No, you can probably ask them कि these are the deadlines that we have, कि ये काम कितना इफेक्टिवली हम इस पर्टिकुलर डेडलाइन में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. व्हाट आर द चैलेंज शायद तुम लोग फेस कर रहे हो, डू यू वांट टू कम्युनिकेट ऑन दैट, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, है ना? तो वो भी जानना, इट्स समथिंग दैट यू आर टेकिंग दैट हायरार्की स्मूथली, है ना? तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एज अ मैनेजर एज वेल. तो वो एक चीज तुम ध्यान में रख सकते हो एज अ मैनेजर. अल्टीमेटली देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर द एम्पैथी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर द काइंडनेस, right? So that thing has to be in your mind while communicating with your juniors. So वो hierarchy बीच में नहीं आनी चाहिए while doing that. I think yes, I am better able to understand आप जो बोल रहे हैं कि चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप टीम लीड हो, but when it comes to mentoring someone, तो mentoring कहीं ना कहीं उतना ही हम रखें जहाँ पर सामने वाला person genuinely needs our help. हमें हर चीज में ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सामने वाले पर्सन को ओवर एक्सप्लेन करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिर्फ हमको ये ए से बी बता दो एंड देन इसको जेड तक वी कैन टेक इट देन. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि किस पर्सन में कितना कैपेबिलिटी है और कौन सा पर्सन किन चीजों को कितना इफेक्टिवली रन कर सकता है. एंड एट द सेम टाइम जब हम उनको ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जब हम उन्हें एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ दे रहे हैं, तो हमें उनको ये चीज भी बता देना चाहिए कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरी और जरूरत है इस चीज को समझने में, इस टास्क को एग्जीक्यूट करने में, या कहीं पे भी व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दिस टास्क, तो तुम्हें अगर मेरा और असिस्टेंस लगता है, सो आई एम अवेलेबल. सो या आई थिंक आई एग्री कि दैट इज समवेयर अ बेटर अप्रोच इन मेंटेनिंग द हायरार्की. Right. When I come to other things, जब मैं सोचती हूँ other problems which are there in the industry, तो एक जो मतलब बहुत ही अटपटा बात आपको लगेगा, हमें फ्रेंडशिप्स तो बहुत ज्यादा देखने मिलती हैं ऑफिसेस में, लेकिन कोलैबोरेशन उतना इफेक्टिव नहीं होता है. मतलब if I talk about किसी भी टीम के कुछ 3-4 लोग अगर मैं ले लूँ, एंड देन जो इंटर टीम का कोलैबोरेशन भी होता है कि मार्केटिंग टीम ले ली, सेल्स टीम ले ली, डेवलपमेंट टीम ले ली अगर एक आईटी कंपनी है तो, और लेट्स से कि पर्सनली वो लोग काफी ज्यादा जेल्ड अप है, काफी अच्छा कॉन्वर्सेशन है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब बात आती है किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करने की, तो वहां पे कोलैबोरेशन नहीं उतना इफेक्टिव होता है. वहां पे हमें देखने में मिलता है कि देयर आर फाइट्स दैट आर हैपनिंग, देयर आर मिसकम्युनिकेशन, blame game starts happening even if personally काफी ज्यादा अच्छी. So yes, I want to know a little about कि क्या आप भी ऐसी चीजें देखते हैं या देख चुके हैं कभी, एंड किस तरीके से आपने इन चीजों का हैंडल किया? See, the groupism, no, where you are bound to be with someone जिसके साथ तुम comfortable हो, जिसके साथ तुम्हारे अच्छी bonding है, it's there. Whether it's college thing, whether it's workplace या फिर कहीं पे भी जहाँ पे तुम कंफर्टेबल, मतलब फ्रीलांसिंग स्टफ एज वेल, है ना, जो टेम्पररी तुम्हारे लिए वर्क प्लेसेस वगैरह देते हैं, हर जगह पे ये होता ही है. एंड आई गेस इट्स गुड टू हैव सराउंडेड बाय द पीपल जो कि तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, है ना, क्योंकि हर जगह पे तुम अगर ऐसे है कि सिर्फ तुम अपना काम कर रहे हो, एट द एंड सिर्फ घर पे जा रहे हो, दैट्स नॉट इट विल गोइंग टू वर्क, राइट? यू शुड फील लाइक यू आर स्पेंडिंग 8 hours ऑफ योर डे at one particular place. तो वो एक जो 8 घंटे तुमको बिताने हैं एक जगह पे, सिर्फ अपना काम करके तो नहीं बिताने, राइट? सो यू विल गोइंग टू टॉक टू द पीपल वगैरह. तो यहाँ पे अगर 2 सिनारियो लिया जाए, आईटी डिपार्टमेंट एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, उनको कैंपेन्स रन करनी होती है, उनको सेल्स ड्राइव करना होता है, बहुत सारी चीजें. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चीजें जो होगी वो बहुत हाई लेवल पे होगी, क्योंकि दे विल गोइंग टू इंटरेक्ट between their seniors, their juniors, कि ठीक है ये ऐसा हुआ वो. There are the high possibilities. यहाँ पे जो कोलैबोरेशन की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे ज्यादा दिखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक टास्क एक दूसरे के साथ लिंक करेगा, राइट? अगर एक ने कैंपेन रन किया तो दैट अनदर पर्सन विल गोइंग टू एनालाइज द कैंपेन एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे फ्रेंडशिप भी ज्यादा दिखने को मिलेगी, बिकॉज दे आर टेंड टू टॉक टू ईच अदर फॉर दैट वर्क थिंग, राइट?
यही अगर दूसरे एंड पे अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट लूं, दे विल नॉट गोइंग टू, यू विल नॉट गोइंग टू सी दिस पीपल आर टॉकिंग, दे आर जस्ट फोकस्ड एट देयर स्क्रीन एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर पर्टिकुलर टास्क एंड देयर आर द वेरी लेस चांसेस कि उनको किसी दूसरे इंसान से बात करनी है जस्ट फॉर सम टेक्निकल ग्लिच, दैट्स इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कम्युनिकेशन जितना मार्केटिंग टीम में दिखेगा उतना शायद ही टेक्निकल टीम में दिखेगा. सो इट्स तो ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंटल. एट द सेम टाइम जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में अगर मैनेजर्स का प्रेजेंस चाहता है, द मैनेजर पीपल आर सिटिंग देयर एंड अगर उनका विजन डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव्स पे जा रहा है, सो अगेन वहां पे भी थोड़े से कम चांसेस होते हैं कि दे विल गोइंग टू जस्ट बात करेंगे, इधर उधर घूमेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं यहाँ से उठता हूँ या फिर कुछ भी नॉनसेंस वगैरह बात कर रहा हूँ कि उसको नेविगेट करने के लिए आगे ही मेरा मैनेजर बैठा है. सो दैट थिंग इज ऑल्सो देयर. सो टू हैविंग अ फ्रेंडशिप एट द वर्क प्लेस देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अगर वो फ्रेंडशिप तुम्हारे प्रोडक्टिविटी पे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी जो तुम्हारे काम पे अगर उस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, देन श्योरली तुम्हारा एक परफॉर्मेंस जो नेविगेशन होता है वो इट हैज टू बी देयर. तुम्हारा एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है वो करना चाहिए. एंड लेट्स सी कि मतलब क्या एक कुछ चीजें होती है बेसिक सी जो हम ध्यान में रख सकते हैं एंड टू वर्क टुवर्ड्स इट. रादर देन दैट हैविंग अ फ्रेंडशिप देयर इज नो प्रॉब्लम. क्विकली मूविंग ऑन टू हमारा जो एक नेक्स्ट कॉमन चैलेंज जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें कि हम में से कई सारे होते हैं. आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हैं. हम कोई सा भी अगर हमें टास्क दिया जाए तो हम बहुत केयरफुली उसको करते हैं. जैसे मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ छोटे से एलिमेंट्स पर भी. अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रही हूँ तो मैं ध्यान देती हूँ कि पैराग्राफिंग कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, फॉर्मेटिंग सही है कि नहीं, जो भी टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो प्रॉपरली एम्फेसाइज देखती हूँ. एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जो टीम मेंबर्स हैं उनको कई बार लगता है कि ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सोशल क्रिएटिव पर वर्क करती हूँ और मैं सोशल क्रिएटिव पे जब काम कर रही हूँ तो मैं जब इमेज टेक्स्ट बनाती हूँ तो मैं लिटरली इतना डीप चली जाती हूँ उसमें कि मैं कुछ अगर मुझे फॉन्ट एम्फेसाइज करना है तो अगर बड़े चाहिए मुझे तो मैं बड़ा एक्चुअली उस डॉक्यूमेंट में उस तरीके से बना के देती हूँ कि अगर मुझे कुछ 3 कॉलम में चाहिए तो मैं लिटरली कंटेंट को 3 कॉलम में सेट करके एंड देन फिर मैं अपने डिजाइनर को देती हूँ. कई बार डिजाइनर्स को उस चीज की बहुत चिढ़ भी आती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने जो इमेजिन कर लिया ऐसा नहीं है कि विल गेट द आइडियल डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर दैट, या फिर वी डोंट नो ना कि आप क्या सोच के चल रहे हो. तो आई थिंक ये आप भी कहीं ना कहीं देखते होंगे कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अटेंशन टू डिटेल वाले होते हैं. एंड आई थिंक जब तक आप खुद के काम में वो डिटेलिंग डालो तब तक अच्छा भी लगता है, बट जब आप दूसरों के काम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो उस नेचर की वजह से, तो वो आसपास वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं अंटिल एंड अनलेस कभी इस तरीके का एक डिसीजन होता है या वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवरसेल्फ, तब तक हमें नहीं पता चलता. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने कभी ऐसा फेस किया हो या क्या आप, इफ यू आर द वन योरसेल्फ, प्लीज बताइए. Yes, I am the one myself. So here, as you mentioned, it's more of related to your nature, है ना? So I guess this is the major factor, because here I would like to share my hobby thing, where I am into the more of a paintings, right? Where I do paint a landscapes. So इसमें my जो अपन बात कर रहे हैं detail orientation, it actually plays a huge role, because whenever I draw, I go to the very details thing. अच्छा ठीक है, ये color palette if I am using it, ये इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है. So this particular nature actually reflects at my workplace as well. For example, जब मेरे internship का time था, they used to give us a SOP, right? कि एक particular task है, तुम्हें इस time पे complete करना है. Weekly देते थे या फिर daily basis पे देते थे. तो ये SOPs जो होती है वो obviously you will go to understand each and every factor. तो फिर मैं, as I am very curious about lot of things, to be honest, in my personal life as well, so I tend to ask lot of questions कि ठीक है मैम, ये अगर आपने मुझे दिया है, so is it something I can do different way as well, और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? And what I used to
hear back from them कि बेटा अभी बहुत कुछ है सीखने को, you are just an intern, don't go into the details, just we are giving you the task, वो करो, बस इतना ही. बट जब मैं इंटर्न से एग्जीक्यूटिव पे ट्रांसफर हुई या फिर एक जो होता है ना ट्रांजिशन हुआ, देन दैट थिंग एज अ एग्जीक्यूटिव, एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, एज अ अथॉरिटी, वहां पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टी यस आती है, क्योंकि तुम एज यू सेड कि डिटेल ये सारी चीजें तुम कहीं ना कहीं खुद के नेचर की वजह से रिलेट कर पाते हो. सो एट दैट टाइम यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर एज वेल टू डू द सेम, राइट? नॉट पॉसिबल, राइट? इफ यू आर डूइंग समथिंग इन अ सर्टेन वे एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे जूनियर्स या फिर जो इंटर्न है वो भी एक सर्टेन पैटर्न में करे, so that's not gonna work, right? So here in the HR domain we have the term hollow effect, right? या फिर हॉर्न इफेक्ट, जहाँ पे तुम अपने पर्सनल ट्रेंड्स की वजह से आगे वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो. सो बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल नेचर या फिर पर्सनल ट्रेड की वजह से तुम जो एक्सपेक्टेशन अपने जूनियर्स से रखते हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. सो हियर व्हाट आई पर्सनली डू फॉर द सटल वे टू डू माई वर्क, कि ठीक है मैंने एक अपना पैटर्न में अपना काम कर लिया, दैट्स माय वे, व्हाट इज योर वे. तो मैं इंटर्न्स को भी बोलती हूँ कि ठीक है, यू डोंट हैव टू टेक दिस थिंग्स पर्सनली या फिर तुमको एक ही पैटर्न फॉलो करना है. इफ यू वांट टू डू इट इन अ डिफरेंट पैटर्न यू कैन जस्ट डू इट, यू हैव द टोटल लिबर्टी. ऑल आई वांट टू जो एक पर्टिकुलर टास्क है, अगर कुछ और भी क्रिएटिव अदर मेथड्स है, आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज इसमें में पैरेलली लर्निंग्स भी चलती है. So this is something I'm actually day to day life पे मैं खुद भी लर्न करती हूँ, खुद भी काम करती हूँ, and yeah. So I think मैं मतलब even I am remembering one of the incidents. अभी recently we did one of our photo shoots, so I was personally involved in that. और काफी सारे लोग थे. I mean we asked everyone to come in our corporate t-shirts and everything. We wanted it to be a little casual, but of course, कहीं ना कहीं company को present करते, so we wanted that to be, right, showing in our pics. तो ऐसा हो रहा था कि when I was taking pictures, I was very particular about it कि okay, take this spot. Correct. फिर then अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा लंबा person है या अगर कोई थोड़ा सा ज्यादा छोटा person है, तो उनके according चीजें fix करना, asking everyone to adjust their attire properly. तो क्योंकि क्या होता है कि जब कोई एक फोटोग्राफी के लिए आ रहा है तो दे आर कमिंग विद अ वेरी, ऐसा जब बता दिया कि कैजुअल है तो वो वहां से चिल आउट होके आते हैं. एंड देन व्हेन आई एम गोइंग लाइक कि बटन अप करो या टी शर्ट ठीक करो या डोंट कीप एनीथिंग इन योर पॉकेट, इट इज अपीयरिंग इन आवर पिक्चर्स. तो आई वाज एबल टू सी कि सब लोग कॉन्शियस हो रहे थे कैमरा को लेके. कई सारे ऐसे लोग थे कि जो ऐसे जनरली बहुत ही अच्छे फोटोजेनिक पिक्चर्स होते हैं जिनके, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी कि आप ये करो, डू दिस, डोंट डू दिस, तो वो कहीं ना कहीं उनके पिक्चर्स बिगड़ रहे थे. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग, अब मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है वो चीज व्हेन वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन कि हम कई बार अननोइंगली ही काफी ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जाते हैं. And we want that other person to behave in a certain way that we are actually doing it. So ये expectation कहीं ना कहीं it's not relevant. So yeah, as a manager, as a a higher authority, we should understand. यही मैं चीजें समझ के फिर day to day life पे भी implement कर रही होगी. So I can definitely say that it's a positive response from other team and other people as well. कि मैम पहले तो आप ऐसे ऐसे बोलती थी हमें कि ऐसे ऐसा करना चाहिए, now you are giving me the liberty. तो yeah, that's a good thing. It is going really good. I mean. अगेन मुझे लगता है यहाँ पे एक चैलेंज जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि व्हेन इट कम्स टू, जब आप एक जैसा मेरा पिछला एक कंसेप्ट था, जब आप एक बहुत ही बड़े कंपनी में काम करें जब 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो अगेन वहां पर जो प्रोसेस सेट हो चुकी है वो प्रोसेस सेट हो चुकी है. अगर एक बार ऐसा हो गया है कि दिस इज नंबर 1 विच नीड्स अटेंशन, दिस इज नंबर 2 विच नीड्स अटेंशन, दिस इज नंबर 3 विच नीड्स अटेंशन, और ऐसे में कोई पर्सन आ रहा है नया जो कि शायद इफ आई टॉक अबाउट एक पर्सन जो मेरी जगह शायद कोई और फोटोग्राफी कर रहा होता और वो शायद नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बटन अप है कि नहीं लोग, ठीक है, दे आर लाइक ठीक है खुला हुआ है बी, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक
सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है जब आप एक कॉर्पोरेट ही नहीं होना चाहते हैं, बट हाँ आप एक सोफिस्टिकेशन चाहते हैं आपके ब्रांड में। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रांड परसीव हो वो एक अच्छे लेवल पे परसीव हो, उसका एक जो एक्सेप्टेंस हो वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को चेज करते हैं। आई थिंक जब बात आती है, क्योंकि आई हैव हैड दैट एक्सपोजर ऑफ वर्किंग विद सम वेरी बिग कॉन्ग्लोमरेट्स, तो जब मैं बात करती हूँ बड़े ब्रांड के साथ काम करने की, तो हाँ मेरे साथ भी वो एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ पर काफी ज्यादा दे वर पेइंग अटेंशन टू इवन ईच एंड एवरी वर्ड, कि अगर मैंने किसी को लिख के दिया है तो दे वर लाइक इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एंड व्हाई आर वी यूजिंग ओनली दिस वर्ड, व्हाई कांट वी रिप्लेस इट विद सम अदर वर्ड. So yes, I have worked with so there are the other possibilities as well. एक certain process में जब अपन काम करते हैं तो we are bound to keep ourselves within that circle only. सर्कल के बाहर भी possibilities हो सकती है. We should explore that. And in this matter, I would definitely say the Gen Z people है ना. Earlier हमने जो देखा कि millennial people जो होते हैं, जो usually 2000 पहले वाले, उनको एक certain चीजें पता तो वो कर लेंगे. There is no objection or रिवर्ट वाला चीज. बट इफ वी टेल न्यू पीपल एक सर्टन में, तो उनकी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, क्यूरियस माइंड रहता है कि मैम व्हाई नॉट दिस वन, व्हाई नॉट दिस वन. एंड वी शुड नॉट नेग्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ दिस पीपल. दे आर, इवन इफ दे आर डूइंग देयर वर्क इन अ देयर मैनर, इन देयर पैटर्न, they were going to explore a lot of opportunities and the possibilities, right? So it's okay to give them a liberty that way. All we want is the result. So as long as we are getting a result, doesn't matter who cares about the process, right? We as a manager also can explore, oh, okay, this is the something new, like I haven't seen it or I haven't heard it. So you as a manager also learning lot of things from the new people, like they are the good with the technologies, they are the good with the, lot of social media stuff. Nowadays, if I talk about the marketing one, the performance marketing is the boom, right? So for that matter, social media is only the platform that you can explore. So for that matter, Gen Zs are the best people that you can hire and to keep them sustain in your organization. So yeah, that thing is there. Very well. एक चैलेंज जो मैं और सोच पाती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज है हमारी इंडस्ट्री में, आई थिंक 99% लोगों में ये कहीं ना कहीं होता है, और मे बी 999 आउट ऑफ 1000 पीपल हैव दिस ट्रबल, कि वो सुनते हैं बट वो सुनते इसलिए नहीं है कि उनको सुनना है या समझना है, जिसे हम एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं. कई बार हम सिर्फ कुछ वर्ड सुन के और हमारा एक जवाब रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं. तो यस, आई वांट टू नो अ लिटिल कि किस तरीके के आपके अकॉर्डिंग चैलेंजेस आ सकते हैं, या कितना जरूरी है एक्टिव लिसनिंग, की सामने वाले पर्सन को पूरा बोलने का मौका देना, उसकी पूरी बात सुनना और फिर उसके बाद थोड़ा सा वक्त लेके उसका जवाब. So here, I recently saw one interview where the Anushka Sharma, she gave उसका खुद का जो personal experience है when it comes to the active listening, उसने share किया था. And उस time पे I could definitely relate much, क्योंकि ये जो active listening जो terminology है ना, by definition I used to know कि मतलब कॉलेज में थी कि तुमको पहले सुनना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग से ही बातें बहुत ज्यादा अच्छे वे में तुम कम्युनिकेट कर पाओगे, समथिंग लाइक दैट. बट आई डिड नॉट एक्चुअली मीन कि उसके जो एक रिफ्लेक्शंस होते हैं, उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो होता है वो कितना हद तक के रह सकता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल से एज यू मेंशन द एक्टिव लिसनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है. तो कॉलेज डेज में क्या होता था कि अगर कोई इंसान मुझे बता रहा है तो मुझे सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है. ओके, मुझे सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बताना है या मुझे एक पर्टिकुलर रिप्लाई देना है. उसके लिए मैं सुनती थी कि ठीक है, एक पॉइंट आया और मैंने आंसर या फिर कुछ बोल दिया, दैट्स इट, हियर द टॉपिक एंड्स. बट ये जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर हुई तब ये एक्टिव लिसनिंग का जो रियल इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया. नाउअडेज आई डोंट लिसन टू जस्ट रिप्लाई, आई लिसन टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ओके, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आते हैं, समझो कि किस बारे में है. ओके, टेक अ पॉज, टेक एनालाइज करो कि ठीक है, तुम्हारे अगर प्रोफाइल रिलेटेड है देन ओनली टॉक. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, इररिलेवेंट चीजें अगर तुम रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं गलत सेंस में भी चली जाती है, राइट? तो उस वे में तुमको पहले समझना आगे वाले इंसान को व्हाइल दैट पर्सन इज टॉकिंग इज रियली इम्पोर्टेंट. तो इसलिए टेकिंग अ पॉज, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड इज अ
major thing which is we call it as a active listening, right? तो ये जो चीजें है ना, जितना जल्दी तुम समझ लोगे उतना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. Trust me, like even in the college, even at the early stage of the corporate, even at you're at the manager level, right? Even कुछ चीजों में एक होता है myth कि if I am at the authority, probably active listening वगैरह जो होता है ना, why would I spend time? But यहाँ पे भी when I talked about like 360 feedback, no, कि वहाँ पे भी तुमको अपने juniors को सुनना है, ठीक है? Because these people are your peers at the same time. These people are doing work for you, so it's very important for you to understand them, for you to listen to them very carefully, take a pause, then revert. Okay, so yeah, active listening is important, not just at workplace, in the personal life as well. Personal life में भी आप देखिए like कितने miscommunications होते हैं. I तो just avoid talking with people on the chat, क्योंकि chat पे there is nothing at all makes sense. Like you can't see the person expressions, you can't sense the that person मतलब कौन से इमोशंस के साथ बोल रहा है. एंड पर्सनल लाइफ में आई हैव सीन द सब्सिक्वेंसेस एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट पर्सन इज सेइंग समथिंग एल्स टू मी, आई हैव टेकन इट इन अ डिफरेंट सेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट कंफ्लिक्ट हैपेंड. एंड जब हमने फिर कॉल पे बात की किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, ओह देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा तुमने इस सेंस में बोला था, आई एम सो सॉरी, आई टुक इट इन अ डिफरेंट सेंस. So try to avoid talking to anybody, even at your workplace, even at your personal life. Chatting पे बात करना बंद कर दो. If you want to have a conversation, just have a quick call and finish the topic. So this is also, plays a huge role. कौन से platform पे तुम बातें कर रहे हो या फिर सुन रहे हो उस इंसान को? I think yes, I am better able to understand and relate to what you are saying. क्योंकि जब बात अभी जो हम देख रहे हैं कि रिमोट कल्चर जो है वो धीरे धीरे स्विच होता जा रहा है, टीम मेंबर्स आर बीइंग कॉल्ड बैक टू ऑफिसेस. सो यस, आई थिंक कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं एक बिग रोल प्ले कर रहा है इस ट्रांजिशन में. सभी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है. ऑफ कोर्स देयर आर लिबर्टीज, देयर आर perks of working from home या working remotely, but at the same time अगर वो collaboration या वो communication जिसमें gap बार बार आ रहा है, या अगर लोग आपस में एक दूसरे को जान नहीं पा रहे हैं, so yes, I think after our this conversation में actually I can make sense of कि क्यों इन बड़े बड़े corporates को जरूरी लग रहा है कि उनकी जो team है, they should get back to office and they should work from office. क्योंकि एक जो आपने चैट वाला पॉइंट बोला, अगेन आई रियली लाइक इट, कि जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो एक छोटी सी बात भी बहुत ही प्रिसाइज मैनर में हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल वो फाइल मिल गया एंड इट्स लाइक दोनों को पता है विच फाइल वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हेन टू पीपल आर ऑन चैट, सो वन इज गोइंग टू हाय, हाउ आर यू डूइंग, आई वांटेड टू चेक द स्टेटस ऑन दैट फाइल. फिर क्या पता दूसरा पर्सन उस वक्त किसी काम में लगा है या दे आर ऑन अ मीटिंग. फिर जब वो पर्सन फ्री होगा, देन दैट पर्सन विल लुक एट द मैसेज, फिर वो जवाब देगा कि नो और इट्स ऑलमोस्ट डन, बस 2 मिनट का काम बचा है. अभी तू ऑलरेडी आधा घंटा ले चुका है रिप्लाई करने में, करेक्ट और लगेगा. देन यू विल गो ओपन द फाइल, या शायद मे बी दिस पर्सन विल टेक अनदर 10 minutes टू रिप्लाई कि अच्छा आप हमको जल्दी करके, दिस इज द प्रायोरिटी. तो फिर वो पर्सन अगेन 5 मिनट बाद या 8 मिनट बाद देख रहा है, फिर वो बोल रहा है ओके, फिर वो 10 मिनट में सारी चीजें करे. तो एक चीज जो आप अगर आप एक ऑफिस में बैठे हुए होते तो आप सीधे जाते ही रहेंगे, हाँ क्या चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, लुक यार मेरे लिए ना थोड़ा सा ये प्रायोरिटी है, तो क्या कहीं प्लीज क्विकली, और वो कहीं ना कहीं 10 मिनट 15 मिनट में आपके पास होके आ जाए. जबकि जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वही सेम चीज होने में 1 घंटा 2 घंटा होता है. कई बार देयर आर सो मेनी टीम मेंबर्स हु आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, जिन्हें लगता है कि हाँ बस मैसेज देख लिया तो हो गया, मतलब एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं कि हाँ ना क्या है. Yeah, true that. Even it actually happens with the higher authorities as well. They probably are not able to give you a proper feedback, है ना, एक proper एक जो revert होता है. But even if you are at the junior level, it's also your responsibility to check with your manager या फिर एक जो टीम लीड है
कि व्हाट इज गोइंग ऑन, या फिर होता है ना एक जो मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, आई हैव डन दैट, व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज योर फीडबैक। तो क्यूरियस माइंड के साथ जाओ, सर मुझे भी फीडबैक चाहिए आपके एंड से, मुझे भी बताओ कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ या फिर कहाँ पे सही जा रहा हूँ, सो दैट आई कैन एक्नॉलेज दैट थिंग एंड अकॉर्डिंगली आई नेसेसरीली मूव अहेड विद दैट पर्टिकुलर फीडबैक, है ना। तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है। एंड यस, इवन इफ यू आर डूइंग अ रिमोट जॉब, प्लीज अवॉइड having a conversation on the chat. You can just have a very quick call for any sort of problem that has to be done, and it would, if you yourself will see the changes, you yourself will see the thing कि कहाँ पे मुझे fast replies आ रहे थे, कहाँ पे मेरा काम जल्दी हो रहा था, and कहाँ पे clarity maintain हो रही थी while having the conversation. So you will see that personally. Well, I mean, हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं, बट आई एम श्योर साक्षी आपको खुद को भी कुछ चैलेंजेस फेस होते होंगे, सो इफ यू विल बी कंफर्टेबल अबाउट ओपनिंग अबाउट योर चैलेंजेस, क्या आप चैलेंजेस फेस करते हैं और कैसे आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं डे टू डे लाइफ? Like as we talked about, work from offices, work from home. In my current organization, we guys are doing a work from home. Okay. So as I mentioned, it's a startup. We are the edtech company and we are, growing in this particular market. तो इसमें जैसे होता है कि there are the various competitors in the market, right? Yes, I have seen this the communication gap, right? तो वो एक चीज को हम कैसे फेस कर रहे हैं? For example, say at the end of a week, we are having a particular meet with our entire team where our head is also present, and we used to discuss कि पूरा हफ्ते में क्या क्या चीजें कवर अप हुई है। तो ये जो कम्युनिकेशन जो चीज हो रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इफेक्टिवनेस जो हो रही है, वो मेजर चैलेंज वी गाइस आर फेसिंग एज वी ऑल आर डूइंग अ वर्क फ्रॉम होम। तो ये जो मेजर हो गया। सेकेंड थिंग, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, टेक्निकल ग्लिच हो गया, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिजॉल्व कि ठीक है हमारा सीआरएम काम नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है किसने लॉग इन किया, किसने लॉग आउट कर लिया। तो कभी कभी ये चीजें भी हो रही है। अभी जैसे अगर हम वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे होते हैं तो देयर आर द हाई पॉसिबिलिटीज कि वो फटाफट से फिक्स हो जाता, एंड एट द सेम टाइम लोग वहां पे प्रेजेंट है, सो यू विल नॉट गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम कि किसने लॉग इन किया या नहीं किया एंड कितने टाइम तक के वर्क किया, ठीक है, वर्किंग आवर्स वगैरह। तो ये सारे नेविगेट करने के लिए हमें टोटली फिर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करना पड़ रहा है रादर देन द फिजिकल अपीयरेंस, राइट? सो दिस इज ऑल्सो द मेजर चैलेंज दैट वी गाइज आर फेसिंग. And this is the two major one which we can say that is a major, And see, the remote job, this is not a problem. For example, say even you also know that while the pandemic thing happened, the remote job में ही बहुत सारे लोगों ने continue किया है. For example, say tech companies, वो तो चली है. बाकी की बहुत सारे कंपनी ने कहीं ना कहीं स्टॉप तो भी कर लिया था वर्किंग, बट टेक कंपनी ने completely remote switch कर लिया था. Nowadays also like big companies are doing a hybrid mode to sustain that thing. So remote thing is not a problem, but sometimes yes, work life balance जो बोलते हैं कि you are not completely enjoying your life and you are not completely enjoying your work as well, where you तुम जब remote काम कर रहे हो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं काम कर रही हूँ घर से किसी की आवाज आ जाती है loud and clear and you can't even neglect that because there is no other option. You are just तुम घर से काम कर रहे हो तो क्या कर सकते हैं? You can't just tell अपने घर के लोगों को कि प्लीज कीप क्वाइट, मेरा मीटिंग चल रहा है, मेरा काम चल रहा है. तो ये जो लॉट ऑफ जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, तो या दैट थिंग इज देयर. कभी कभी उनका एक परसेप्शन रहता है कि अरे घर से ही तो काम कर रहे हो, बट स्टिल दिस इज द वर्क. प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट? तो ये जो होता है कि तुम प्रॉपरली ना काम एंजॉय कर पा रहे हो ना घर का एनवायरनमेंट एंजॉय कर पा रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाता है. ओके, सो आई थिंक ये चैलेंज हम सबने फेस किया है. पैंडेमिक के टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था. विद गॉड ग्रेस कहीं ना कहीं आई फील आई एम माई सेल्फ लकी कि मेरे पेरेंट्स जो है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग रहे हैं. सो दे हैव दिस हैबिट कि वो लोग मतलब एक समझ जाते हैं कि दीज आर द लेवल्स ऑफ वॉल्यूम्स जो कि हमें मेंटेन करनी है
क्योंकि कब एक मीटिंग चल रही है, when things are going on. Correct. And the only disturbance I faced was जब चाय बन रही होती थी, या फिर when it's next time कुछ वो लोग खा रहे हैं, some guests are coming. I think मेरे लिए जो सबसे मेजर चैलेंज रहा था वो ये था कि जब भी कोई गेस्ट आ रहे थे, so we had to get down. I used to be on first floor, my parents had to be on ground floor. मुझे हर बार I had to go down, meet those people, greet them, sit with them for like maybe couple minutes. तो या वो एक चीज कभी इरिटेट भी कर जाए, क्योंकि अगर मैं जैसे एक मीटिंग से उठी हूँ and then my parents are expecting, अच्छा ठीक है मीटिंग में आके 2 मिनट तो I was like, अरे मैं गुस्से के साथ उठी हूँ, give some time, right? To absorb that. And because of this pandemic thing, जहाँ पे हम remote culture में बहुत ज्यादा ये चले गए थे, उस वजह से इंडिविजुअली भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बट एट द सेम टाइम इंडियन पेरेंट्स को, जिनके बच्चे कहीं ना कहीं घर से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है. टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई हैव सीन माय पेरेंट्स, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई है कि कम्प्लीटली तुम घर से काम कर रहे हो. दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये सर्टन पैरामीटर्स होते हैं जो शायद हमारे बच्चे ऑफिस में फॉलो कर रहे हैं, अभी उनको थोड़ी पता है, राइट? तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजों पे काम किया है along with us, right? So yeah, कहीं ना कहीं इंडियन पेरेंट्स ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं along with us because of this remote culture. So it's a plus thing only. Well, I think I agree. I think हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है आज साक्षी, और I am quickly moving on to the last segment of this episode. Yeah. So yeah, this segment is not as exciting as अभी तक हमारा जो conversation था. इसमें मैं जानना चाहूंगी if you have any tips या कुछ एक particular point which you want to share with your industry colleagues. कुछ भी एक tip हो HR के लिए या कोई भी काम से. See, when it comes to the HR people, as you mentioned, the purpose of this podcast to give them a platform, to give a platform to the HRs so that they can also, try to communicate their perspectives, right? So that thing is there. So being an active communicator, not a passive communicator. So it will going to add a lot of points to your profile. So this is going to be a major thing which I would like to tell the HR people as well. Key active listening, at the same time active communicator. Doesn't matter you are at the junior level, doesn't matter you are at the senior level. These two skills which are going to help you to sustain, right? And at the same time we all are seeing that the AI and machine learning is going crazy in the future. But trust me, there is no replacement for the collaboration. There is no replacement for the communication, empathy, kindness, as I mentioned. So keep these things with you while working at the one senior position, and at the same time try to reflect all these skills at your peers, at your colleagues, at your employees. तो वो एक कल्चर ना पॉजिटिव बना रहेगा, and you as a HR also will not going to face a lot of difficulties, है ना? कम्युनिकेशन को लेके हो गया या फिर कुछ ग्रीवियंसेस है तुमको सॉल्व करने हैं. If you are a good communicator, if you are a good listener, there is no point, मतलब there is no point कि तुमको कोई difficulty face करने की दिक्कत रहेगी, right? And the major tip which I would like to give a new people who is entering in this particular domain, upgrade yourself at every point. Doesn't matter कि तुमने MBA complete कर लिया, what is next? It doesn't matter कि MBA हो गया, तुमको job मिल गई, that's it, life is sorted. Technology getting upgraded, right? The skill sets there are a lot of skill sets there that you should keep in mind to upgrade yourself. Courses करते रहो, certifications courses करते रहो, talk to your peers, talk to your senior level of people so that you can get some learnings from them as well. And unlearning भी एक skill होती है, तो time to time वो भी चीजें अडॉप्ट कर लो कि ठीक है अगर मुझे ये sort of चीजों की जरूरत नहीं है, unlearn that particular thing. Okay, waste management which we learn in the Lean Six Sigma as well as. तो ये पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है. अनलर्न करो जो सारी चीजें तुमको इम्पोर्टेंट है, उस ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल. जितना तुम आगे जाओगे लाइफ में उतना वो बेटर रहेगा. या इवन I myself read a lot about the HR thing, and not just the HR thing, like different market aspects and everything, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे insights देता रहता है.
So yeah, upgrading yourself at every moment is the plus thing. Whether you are the manager, whether you are the junior people, doesn't matter. Thank you so much, Sakshi. I'm sure कि आपकी जो tip है to keep on learning, keep on upgrading, and also to unlearn a few things. जो बाकी industry colleagues हैं उनको बहुत ज़्यादा help करेंगी. And जो freshers कहीं ना कहीं aspire करते हैं to become HRs, उनके लिए भी this is going to be a really great and guiding suggestion. So with that, I would like to end our today's episode. Thank you so much, Sakshi, for your time. Thank you so much, Anshina. Thank you.